آج ویو 360 میں خیبر پختونخوا میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کی کوششیں، کرونا وائرس کی نظر۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو ہم اثر نو سے ان لوگوں کی بحالی شروع کریں گے۔ عوام کی معاشی مدد کے لیے امریکہ اور یورپ میں مختلف نوعیت کی پالیسیز، اور وبا کے دوران لوگ کیسی فلمیں شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، ویو 360 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جیسے جیسے لاک ڈاؤن کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہمیں صورتحال کے آبادی کے مختلف حصوں پہ مختلف اثرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کے شو میں سب سے پہلے بات کریں گے نشے کی عادت میں مبتلا افراد کی، جن کی بحالی کی کوششیں کرونا وائرس کی نظر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 11 سرکاری مراکز ہیں نشے کی عادت میں مبتلا افراد کے لیے، لیکن ان دنوں ان مراکز کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ۔ بائیس سالہ عبدالاحد آج ایک کامیاب میکینک ہیں۔ وہ موٹر انجن کھولنے، ٹھیک کرنے اور اسے اصل حالت میں واپس لانے کے ماہر ہیں، لیکن کچھ عرصہ قبل تک وہ منشیات کے عادی تھے۔ عبدالاحد کے مطابق 7 سالوں میں انہوں نے لاکھوں روپے اس لت کی نظر کر دیے، لیکن پھر خیبر پختونخوا کے محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے قائم علاج و بحالی سینٹر نے ان کی کایا پلٹ دی۔ پہلے تو رویہ لوگ ہم سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن آتا جاتا بھی نہیں کرتا ہے۔ لوگ کہتا ہے یہ نشے، یہ ڈرگس کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اتنا تبدیلی آ رہا ہے، ہم گھر والوں کے سامنے سب مکمل بیٹھتا جاتا ہے، سوتا ہے، لیکن چکر بھی مارتا ہے، سب کچھ گھر والے ہم سے بڑی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ عبدالاحد کے رشتہ دار بھی انہیں صحت مند اور کام میں مشغول دیکھ کر خوش ہیں۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمیں اپنا بیٹا واپس مل گیا ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ اس کی شادی کر رہے ہیں، اور کام کے بارے میں یہ اپنا ورکشاپ آ رہا ہے، کنٹینیو آ رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی کئی اضلاع میں نشے کی لت میں مبتلا افراد کے علاج اور بحالی کے لیے سرکاری مراکز موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں 90% لوگ جو ہے وہ سکسیسفلی اور ریہیبلیٹیٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی سکسیسفل لائف وہ گزار رہے ہیں۔ ابھی اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہے، انجینئرز ہے اور دوسرے ورکرز بھی ہے۔ پشاور کا یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے سے انتظامیہ نے عارضی طور پر بند کر کے آئسولیشن وارڈ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بندش سے نشے میں مبتلا مریض دوبارہ اس لت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ علاج کے لیے لائے گئے تمام افراد کو ان کے گھروں کو واپس منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس تمام مریضوں کا مکمل ڈیٹا ہے اور ہم اس کے فیملیز کے ساتھ مسلسل رابطے میں۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو ہم اثر نو سے ان لوگوں کی بحالی شروع کریں گے۔ بحالی سینٹر سے نامکمل علاج کے ساتھ گھر بھیجے جانے والے افراد کی ذمہ داری ایک بار پھر ان کے خاندان والوں پر پڑ گئی ہے۔ سینٹرز تو کچھ عرصے بعد شاید دوبارہ کھل جائیں، لیکن کتنے مریض علاج کے لیے واپس بھی جائیں گے، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ لاک ڈاؤن کے دوران پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں غریب اور نادار افراد تک راشن پہنچانے کی تو کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کراچی کی ایک سماجی تنظیم کی کوشش یہ ہے کہ مذہبی اقلیتوں تک بھی ضروری سامان پہنچ سکے، کیونکہ رضاکاروں کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر راشن کی تقسیم کے دوران غیر مسلم افراد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو کمیونٹیز ہم لوگ ابھی ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ نان مسلم کمیونٹی ہم لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹلی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کمیونٹیز کو بہت کم لوگ ٹچ کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوئی ہوئی ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم لوگ اراؤنڈ 200 فیملیز ریچ کر چکے ہیں۔ میرا نام سید فہد علی ہے اور میرا تعلق پاکستان یوتھ فورم ویلفیئر ٹرسٹ سے ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں جو طبقہ، وہ ڈیلی ویجز کا ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز کو کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں۔ جو ضروریات ہوتی ہیں ایک گھر کے اندر، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کوشش کی ہیں مہیا کرنے کی۔ جو ہم لوگوں نے راشن پیک بنایا ہے یہ 5 to 6 فیملی کے لیے 15 to 18 ڈیز کے لیے۔
मंथली हम लोगों को ओवरसीज़ रकम ही देते हैं, ठीक है, वो फिर हम लोग डिफरेंट मार्केट से ऑर्डर प्लेस करके राशन पैक बनवाते हैं और वो फिर हम लोग इन लोगों को देते हैं। सबसे बड़ा मसला लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। इवन अगर राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है तो उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। कितना ही हम लोग कह लें, कितना ही हम लोग कोशिश कर लें, तो उससे होता ये है कि ना सिर्फ उनके लिए एक कंटेजियस बीमारी लगने का खदशा बढ़ जाता है, बल्कि हमारे लिए भी ये बड़ी ख़तरे की घंटी हमारे लिए भी बजने लगती है। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो रिलीजियस सेंटर्स होते हैं, भले से वो मस्जिद हैं, भले से वो मंदिर है, भले से वो चर्च है, ये वो जगह होती हैं जहाँ के जो ओहदेदार होते हैं, इन लोगों को अच्छे से पता होता है कि किस फैमिली में कितने लोग हैं और किस तरह की उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है। तो बेहतर ये कि बजाय इसके कि हम लोग रोडों के ऊपर बांटें या गली मोहल्ले में रश लगा के करें, बेहतर ये कि हम लोग जो रिलीजियस जगह हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग जाके करें, तो उससे एक तो रश भी नहीं लगेगा और हम लोग को जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं वो आप बेहतर तरीके से उनको रीच कर सकते हैं। इससे फ़ायदा हम लोगों को ये हुआ कि हम लोगों को अच्छे से पता चल गया कि जो फैमिलीज़ हैं वो हर फैमिली में एक ही राशन गया है। इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि उनको अच्छे से पता होता है कि कौन सी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं और एक घर में कितनी फैमिलीज रहती हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हमारा यही है कि जो फैमिलीज हम लोगों ने अब कर दिया, अब इनको 15 to 18 डेज़ बाद हम लोग फिर दोबारा राशन देंगे। ये ना हो कि वन टाइम देके हम लोग इनको भूल जाएं, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे अगर लॉकडाउन इंक्रीज़ होता है या एक्सटेंड होता है तो फिर इन फैमिलीज़ को देखना हम लोगों की ही जिम्मेदारी होगी। दुनिया भर में ही कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं बुजुर्ग अफराद। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके बीमार होने का इम्कान ज़्यादा है, बल्कि इसलिए भी कि बहुत से बुजुर्ग जो घरों में महसूर हैं, उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ज़रूरत का सामान उन तक पहुंचा सके। लेकिन इस सूरत हाल में तंजीमों के साथ साथ दोस्त, अहबाब और हमसाए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं अमेरिका में होने वाली ऐसी ही कुछ कोशिशें। डोना एज़ॉन एक 78 साल रिटायर्ड उस्ताद हैं। वो कोरोना वायरस से बचने की खातिर घर पर रहने वाली अपनी दोस्त फेलिस किंग को ग्रोसरीज पहुंचाती हैं। फेलिस किंग कपड़े सीने का काम करती हैं। Oh, hi Donna. How you doing? Is this for me? Yeah, that's for you. Oh, thank you. That's so kind of you. Times like these. ये हालात खास तौर पर मेरे जैसे बूढ़े लोगों के लिए बहुत मुश्किल और तकलीफदेह हैं। खुशकिस्मती से मेरी सेहत अभी अच्छी है और मैं थोड़ा बहुत काम करने के काबिल हूँ। जब तक हो सकता है मैं ये करूँगी। डोना और 75 साल फेलिस किंग दोस्त हैं। फेलिस किंग कहती हैं कि जब से ये वायरस फैला है उनके ग्राहकों ने आना तो छोड़ दिया है, लेकिन उनमें से कई उन्हें फ़ोन करके उनका हाल पूछते हैं। They're business acquaintances. उनसे कारोबारी ताल्लुकात हैं। वो मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा पूछा और मेरा कोई भी काम करने को तैयार हैं। मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। फार्मेसी पर जाना हो, सुपरमार्केट जाना हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लोग बहुत मददगार साबित हुए हैं। Wonderful. वाशिंगटन से मुंसलिक मैरीलैंड के शहर में एक रोटरी क्लब के सरबराह भी इन बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आए हैं। मैं बूढ़ों की मदद करना चाहता था। मेरे क्लब में मुतादिद बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 65 साल और इससे भी ज्यादा है। लिहाजा मैंने सभी से कहा कि अगर किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें और मैं आपकी मदद करूंगा। फेलिस किंग जैसे बुजुर्ग किसी भी मदद का खैर मकदम करते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें जो ताउन और मदद मिली है, इससे उन्हें वो किस्से याद आते हैं जो उन्हें दूसरी जंग अजीम के दौरान लोगों की यकजहती के बारे में सुनाए गए थे। During the Second World War, दूसरी आलमी जंग के दौरान लोग इकट्ठे हुए क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। मुझे यकीन है कि ये एक और जंग है जो हम लड़ रहे हैं। लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसके ज़रिए ही हम इस पर काबू पाएंगे। through that we will overcome. वेंचिंग चाओ के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका और यूरोपी ममालिक में इस वक्त आवाम की मदद के लिए हुकूमतें बहुत बड़े बड़े माशी पैकेजेस मुतारिफ करा रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की भी हिकमत अमली एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जर्मनी और फ्रांस में हुकूमतें कारोबारों को पैसा दे रही हैं ताकि वो मुलाजमों को फारिग ना करें, जबकि अमेरिका में उन लोगों की मदद पे हुकूमत तवज्जो दे रही है जो ऑलरेडी नौकरी से निकाले जा चुके हैं। और रिपोर्ट देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान में बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हुकूमती वादों के बावजूद इमदाद उन तक अभी नहीं पहुंची, कुछ ऐसा ही शिकवा अमरीकी भी कर रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ जब कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र 1 करोड़ के लगभग मुलाजिमीन को घर भेज दिया गया, जबकि लाखों ने बेरोजगारी फ़ंड के लिए दरख्वास्तें दायर की।
مجھے ابھی تک بے روزگاری کا امدادی چیک نہیں ملا کیونکہ اس نظام پر بہت بوجھ ہے. اگر آپ فون کریں تو وہ آپ کی لائن کاٹ دیتے ہیں. اس عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں لگائی گئی معاشی پابندیوں نے بہت سے کاروباروں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. کئی یورپی حکومتیں گھر بیٹھے ملازمین کو آمدن فراہم کرنے کے لیے ان کی کمپنیوں کو مالی مدد فراہم کر رہی ہیں تاکہ صحت عامہ کے اس بحران کے دوران معیشت کو سہارا دیا جا سکے. ایسا کرنا ان ملازمین کی صحت کو محفوظ رکھنے کے علاوہ یقین دہانی بھی ہے کہ اس بحران کے ختم ہونے کے بعد وہ اپنی ملازمتوں پر واپس جا سکیں گے. تاہم امریکہ میں زیادہ تر ملازمین کو ملازمت ختم ہونے کے بعد ہی امداد دی جاتی ہے، جبکہ غیر قانونی تارکین وطن جیسے کئی گروپس بے روزگاری امداد کے اہل نہیں ہیں. متوسط آمدن کے حامل امریکیوں کو حکومت کی طرف سے $1200 کے چیک بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ کانگریس میں اگلے امدادی پیکج کے لیے بات چیت جاری ہے. امریکی حکومت کا ایک پروگرام ملازمین کا روزگار بچانے سے متعلق ہے، جس کے تحت چھوٹے کاروبار اگر کورونا شٹ ڈاؤن کے دوران اپنے ملازمین کو برقرار رکھیں تو حکومت کی طرف سے امدادی قرض واپس لوٹانے سے مستثنی ہوں گے. یہ سب اتنا پیچیدہ شاید اس لیے بھی ہے کہ حکومت ان کاروباروں کو اس حد تک مالی فائدے نہیں دینا چاہتی کہ حالات صحیح ہونے کے بعد وہ نارمل طریقے سے کام کرنے پر راضی نہ ہوں. کئی ریاستوں میں نیشنل گارڈ ایسے افراد میں اشیاء خورد و نوش تقسیم کر رہے ہیں جو حکومتی امداد ملنے تک بنیادی ضرورتیں خریدنے سے بھی قاصر ہیں. میں نہیں جانتی کہ ہم اگلے ماہ کا کرایہ اور بجلی کا بل کیسے ادا کریں گے. حکومتی امداد کی راہ میں حائل انتظامی رکاوٹوں کے خاتمے کے بعد بے روزگار امریکیوں کی کچھ عرصے کے لیے مدد تو ہو سکے گی، لیکن معاشی بحالی میں سست روی کے خدشات بہت سے افراد کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ کورونا بحران کے خاتمے کے بعد کیا وہ اپنی پرانی ملازمتوں پر واپس لوٹ سکیں گے. برائن پیڈن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ کانٹینٹ کے لیے جب چاہیں آپ لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی @UrduVOA کو فالو کیجیے. آپ کو بہت سا دلچسپ کانٹینٹ ملے گا. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی فاصلہ کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہو رہا ہے. اس کا ایک سائن تو اب یہ ملا ہے کہ لوگوں کا درجہ حرارت جو کہ بیماری کی علامت ہوتا ہے ان امریکی شہروں میں کم ہو رہا ہے جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پہ عمل کیا جا رہا ہے. ایک سمارٹ تھرمامیٹر کمپنی اس سے متعلق ڈیٹا جمع کر رہی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. انٹرنیٹ سے منسلک ایک سمارٹ تھرمومیٹر ایسی چیز کی طرح نہیں لگتا جو کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں مدد دے سکے. ایسے سمارٹ تھرمومیٹر سے صارف کا درجہ حرارت ایک ڈیٹا بیس پر اپلوڈ کیا جاتا ہے جہاں تھرمومیٹر کمپنی بخار کو ٹریک کرتی ہے. لیکن اسی طرح کا آلہ تیار کرنے والی کمپنی کنسا ہیلتھ کے چیف ایگزیکٹو اندر سنگھ نے حال ہی میں صارفین کے بخار کے اعداد و شمار اور ان جگہوں پر نگاہ ڈالی جہاں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ جب آپ سماجی فاصلے پر سختی سے عمل درآمد کراتے ہیں، جیسے ایک گھر پر رہنا یا جہاں پہلے سے موجود ہوں وہیں رہنا، یہاں تک کہ بار اور ریسٹورانٹ کی بندش، 3 دن سے 7 دن کے اندر ہی آپ کو بخار کی سطح میں کمی نظر آنے لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سماجی فاصلے پر عمل درآمد سے ہم انفیکشنز کا سلسلہ توڑ رہے ہیں. امریکہ میں تقریباً 20 لاکھ افراد روزانہ اپنا بخار چیک کرنے کے لیے کنسا تھرمومیٹر استعمال کرتے ہیں. اگرچہ کمپنی کی پیش گوئیوں کا دوسرے ماہرین نے جائزہ نہیں لیا ہے، تاہم کنسا کا کہنا ہے کہ اس کے ڈیٹا سے امریکہ میں غیر معمولی بخار کے اعداد و شمار پر نظر ڈالنے کا ایک موقع ملتا ہے. مارچ کے وسط میں کمپنی کے اعداد و شمار نے فلوریڈا اور نیو یارک میں لوگوں میں بخار کی بڑی تعداد دیکھی. اندر سنگھ کا کہنا ہے کہ کنسا یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ کووڈ کیسز تھے، لیکن یہ ایک اہم اشارہ ہے. یہ ایک طرح سے ایک بلب جل اٹھنے کی مانند ہے. یہ کہہ رہا ہے ارے وہاں ایک وبا پھیل گئی ہے، یہاں بھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، آؤ اس کو دیکھیں. وائرولوجسٹ کو بھیجیں، ٹیسٹ کٹس بھیجیں.
इंदर सिंह का कहना है कि उनके अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि कुछ जगहों पर बुखार के केसेस की तादाद कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आम सतह से कहीं ज्यादा है। ये एक बड़े मसले की तरफ इशारा कर सकता है। So the worry is that there are small groups of people. परेशानी की बात यह है कि लोगों के छोटे छोटे ग्रोह हैं या छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जहां वायरस एक दूसरे में मुंतकिल हो रहा है। ये वायरस के ज़खायर के तौर पर काम कर सकता है। ये कोविड-19 के छुपने की जगह हो सकती है, और जब हम अपनी समाजी दूरी की सरगर्मियों में नरमी करेंगे तो ये फिर से फैलना शुरू हो जाएगा। इसकी पेशगोई करने के लिए एक रेस चल रही है कि वायरस कहां फैल रहा है, कौन से इक़दाम काम कर रहे हैं और कब माशरती और समाजी सरगर्मियों को दोबारा खोलना महफूज होगा। स्मार्ट थर्मोमीटर के जरिए इकट्ठा किया गया लोगों के बुखार का डेटा सेहत के एहलकारों के लिए एक सिग्नल हो सकता है जो ये पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। मिशेल क्विन के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। आजकल हम सभी अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देख रहे हैं। अपने प्यारों से दूरी, रोज़गार की फ़िक्र, घर वालों की सेहत की फ़िक्र, जहन में बहुत से ऐसे सवालात गर्दिश कर रहे हैं जिनके जवाब शायद हमारे पास नहीं हैं, और ऐसे में ज़हनी दबाव और टेंशन बढ़ती ही है। तो इस सूरत हाल पर काबू कैसे पाया जा सकता है, ख़ुद को हम काम डाउन कैसे रख सकते हैं, इस बारे में आइए देखते हैं कुछ माहिरीन की राय। जब सौदे सल्फ के स्टोर्स में शल्फें खाली होने लगी तो ये पहली निशानी थी कि कोरोना वायरस अमेरिका में फैल रहा है। लोगों ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अशियाए खुर्दोनोश जमा करनी शुरू कर दी। जब लोगों को मुश्किल सूरत हाल से निमटने के निज़ाम पर बोझ पड़ता है तो वो गैर यकीनी की कैफियत से बचने के लिए इक़दामात उठाने लगते हैं। केन कहते हैं कि दबाव से निमटने के बेहतर तरीके मौजूद हैं। कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ तरीकों की मदद से वो अपने खानदान वालों से बातचीत करके और ये जान कर कि वो घर पर महफूज हैं अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। वीडियो चैट के जरिए वो खानदान के अफराद और दोस्तों को देख सकते हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो, या फिर वर्जिश कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि ये हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे ज़बरदस्त तहकीकी सबूत मौजूद हैं जिनके मुताबिक जिस्मानी मुशक्क़त, बेचैनी और ज़हनी इज़्तिराब के इलाज के लिए सूदमंद है। अहम चीज़ अपने सामने कोई मकसद रखना है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। लोगों को अपनी कुछ कामयाबियां जहन में रखनी चाहिए, ऐसे काम जो मुकम्मल किए गए, ताकि हम खुद से कह सकें ये देखें मैंने ये किया है, क्योंकि इससे बेचैनी कम करने में मदद मिलती है। अगर हम पीछे मुड़कर ये देखें कि हमने कैसे दूसरे चैलेंजेस को अबूर किया तो इससे भी मदद मिलती है। हम सब लोग तभी ज्यादा फलते फूलते हैं जब हम अपने आरामदेह मामूल से बाहर निकलकर काम करते हैं, और यकीनन ये वो वक्त है जब हम में से ज्यादातर लोग खुद को अपने मामूल के कंफर्ट जोन से बाहर पा रहे हैं। और हंसना मत भूलें। Doses of humor are good for us. मज़ा हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारी ज़हनी केमिस्ट्री मुतहर्रिक होती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। मज़ा अच्छी दवा है। अपना कोई तजुर्बा किसी के साथ शेयर करने से आप कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाते हैं। कैरल पेसन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। चलें, इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आजकल लोग अपना बहुत सा वक्त फिल्में देखते गुजार रहे हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किस टॉपिक में लोगों की दिलचस्पी पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है? टॉपिक है वबाएं, ऐसे वायरसेस जो शहर में तबाही मचा देते हैं। लेकिन वजह क्या है? कोरोना वायरस के दौरान लोगों को ऐसी फिल्में देखने का पहले से भी ज़्यादा शौक क्यों हो रहा है? वॉइस ऑफ अमेरिका ने यही जानने की कोशिश की है।
ये कोरोना वायरस की कोई किस्त नहीं है। ये 1995 में वुल्फगैंग पीटरसन की बनाई सनसनीखेज फिल्म आउटब्रेक का एक मंजर है, जो नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 10 फिल्मों में से एक है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान नई फिल्मों के बनाने का काम एकदम रुक गया है और फिर सिनेमा हॉल्स भी आर्जी तौर पर बंद पड़े हैं। ऐसे में आउटब्रेक जैसी फिल्मों को ऑनलाइन देखने में लोगों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। The most optimistic projection for the spread of the virus is this: 24 hours, 36 hours, 48 hours. ये उन बहुत सी फिल्मों में से एक है जो रोज़े हशर की मंजरकशी करती है। ये उस माहौल की अक्कास है जब लोग खौफजदा होकर अपने आप को घरों में बंद कर लेते हैं ताकि वायरस एक से दूसरे को मुंतकिल न हो सके। मगर कोरोना वायरस की वबा के दौरान नाजरीन ऐसी फिल्में क्यों देख रहे हैं? एक माहिर नफ्सियात कहती है कि रोज़े हशर के मनासिर पेश करने वाली फिल्मों में एक मुस्बत नतीजे से लोगों को राहत मिलती है। escapism, right? This idea. ये फरार हासिल करना है। हम अपनी हकीकतों से निकलकर 2 घंटे के लिए इस स्क्रीन को देखते हुए इस कहानी में गुम हो जाते हैं। इन सनसनीखेज फिल्मों के देखने में एक ऐसा जोश और हिजान है जो हमारे दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा देता है। और फिर जो मुझे समझ आती है कि सनसनी के बाद एक खूबसूरत मोड़ आता है और हमेशा एक अच्छा इख्तिताम होता है। Almost always this reparation. फिल्मों की माहिर सिंथिया फुश कहती हैं कि रोज़े हशर की मंजरकशी करने वाली फिल्में जैसे स्टीवन सोडरबर्ग की 2011 में बनने वाली कंटेजन, जो आलमी सतह पर फैलने वाले जानलेवा वायरस से मुतालिक है, नाजरीन में यकजहती के एहसास को उजागर करती है, जो देखते हैं कि कैसे साइंसदान इंसानों को बचाने के लिए वक्त से मुकाबला कर रहे हैं। इकट्ठे मिलकर काम करने का एहसास होना चाहिए। एक रब्त का एहसास होना जरूरी है। एक तरह से हिकमत अमली के साथ मंसूबाबंदी के तहत काम करने का एहसास, जो कि शायद हमारी हकीकी जिंदगियों में गायब है। सिंथिया कहती है कि आलमी वबा की मंजरकशी करने वाली ऐसी बहुत सी फिल्में एक ऐसा मंजर पेश करती है जो कि इस तजुर्बे से कहीं बदतर है जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। इससे नाजरीन को एक तस्कीन मिलती है कि वो ऐसी तकलीफदेह सूरत हाल से नहीं गुजर रहे हैं जिससे फिल्म के हीरोज गुजरते हैं। सन 1919 में बनने वाली फिल्म द प्लेग ऑफ फ्लोरेंस, जो कि स्पेनिश फ्लू नामी वबा के तनाजुर में बनी थी, एक खामोश फिल्म है जिससे पता चलता है कि 20वीं सदी के आगाज से ही लोगों को इस तरह की फिल्मों में दिलचस्पी थी। It's easier to see it on this big screen. इससे मुताल्लिक अपने डर और खौफ का सामना करने से कहीं आसान इसको बड़ी स्क्रीन पर देखना है। वो कहती है कि गैर यकीनी हालात में जब लोग बेचैनी और बेयारो मददगार होने की कैफियत से गुजरते हैं तो वो जज्बात से ज्यादा मखलूब हो सकते हैं, जो कि उनकी बेचैनी में मजीद इजाफा कर सकता है। ताहम उनके इस्तराब को दूर करने का एक तरीका भी हो सकता है, जैसे कि कोई डरोना ख्वाब देखना। आप इससे जाग जाते हैं, आप फिल्म के इख्तिताम तक पहुँचते हैं और फिर कुछ अच्छा हो जाता है। पेनेलोपी पावलो के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। आजकल इंसान घरों में कैद हैं तो बहुत सी जगहों पे उन जानवरों को भी अब शहरी आबादियों में घूमने फिरने का मौका मिल गया है जो आम तौर पे ऐसा करने से डरते हैं। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में जंगली बंदर कम ट्रैफिक का फ़ायदा उठाते हुए खाली सड़कों पर उछलते कूदते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में आवारा कुत्तों को बहुत मुश्किल हो रही है। आमतौर पर तो आवारा कुत्ते और बिल्लियाँ दुकानों के आसपास खुराक तलाश कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों दुकानें बंद हैं तो उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा। इन हालात में कराची के एक फोटोग्राफर अली खुर्शीद और उनकी अहलिया नूर चंद इलाकों में आवारा कुत्तों के लिए खुराक फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। आवारा कुत्ते खुराक के लिए रेस्टोरेंट्स के बचे कुछ खानों पर इन्हिसार करते हैं। अब चूंकि तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो मैं अपने इलाके में दोस्तों की मदद से उनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कुछ मुल्कों में इस वक्त जानवरों की अडॉप्शन पहले से ज़्यादा हो रही है। उस मौजू पे हम आपके लिए रिपोर्ट लेके आएंगे। आने वाले प्रोग्राम्स में सोशल मीडिया के जरिए हमारा और आपका राब्ता कायम रहता है 24 घंटे, तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।